Good morning, students. My voice is audible and screen is visible. Yes, beta. Yes, ma'am. Okay. Now, in the particulars VLSI design, till now, first we started. I'm just recalling for a moment that what we have done till now. ठीक है, तो CMOS इन्वर्टर में रेजिस्टिव एंड एक्टिव लोड में अपन ने पुल अप टू पुल डाउन रेशियो निकाला फॉर NMOS एंड CMOS इन्वर्टर. After that, we also studied regarding its transfer and output characteristics as well as its working. Apart from that, beta and upon beta p ratio, this is an important topic as far as your like short notes are going to concern. Fine. And then this is a noise margin. This plot I have been told you that is important. And when noise margin as a short note used to come, you need to draw this and then you need to explain each parameter. Then we started with the transmission gate. In a first lecture, we discussed about its working. And in the last lecture, I suppose अपन ने ये किया था 2:1 multiplexer designing, 9 gate designing, transmission TG XOR gate implementation, and one more is this. Okay, now today we are starting the gate delay. Is there any confusion or a issue with this particular topic? क्या कहते हैं अपने ट्रांसमिशन गेट? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके. Now what we mean by the gate delay? The particular delay of the simple gates may be approximated by constructing an equivalent inverter. Delay वैसे भी as the name pronounced delay means for any process to be executed, it is taking a little bit time. Gate delay means when I am processing with a gate, whatever process is going to be happen in that particular in between, if there is a delay, then that is going to be there. So there is an inverter where the pull down transistor pull up P. Pull down कौन सा होता है तुम्हारा? N और pull up जो रहता है वो P ट्रांजिस्टर रहता है. So that is going to be there. अगर हम इस सिंपल गेट की अगर बात भी करते हैं, so see जनरली अगर एक सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट रहेगा 2 इनपुट का, so the delay is naturally less. This is a 3 input logic gate. ठीक है, नैंड गेट ये हमारा पर्टिकुलरली पुल डाउन ट्रांजिस्टर है और ये पुल अप ट्रांजिस्टर है. ये PMOS है, ये NMOS है. इधर हमें रिजल्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा? दैट इज A, B, C बार. ठीक है, how you will get and this thing very soon it is going to become CMOS designing. Actually this topic used to be done after CMOS designing, but ये कैसे ये पैरेलल में या सीरीज में है ये मैं तुम्हें 1-2 लेक्चर में जब CMOS सर्किटरी आ जाएगा देन आई विल लेट यू नो. बट एक नेचुरल सी चीज ऐसे भी लो, कोई भी चीज है, सपोज लाइक करंटली आई एम टेकिंग योर क्लास नॉट ऑनलाइन. ठीक है, ये तो ऑनलाइन है, बट in a LT4 or 5 when I used to take your class, so generally it used to be happen na, the distance is less, the voice is more clear. Fine. और इन अ बिग ऑडिटोरियम या हॉल है 32 की भी अगर हम बात करें, so जो फर्स्ट रो में बच्चे बैठे हैं जो उनको आवाज सुनाई देती है फैकल्टीज की, that cannot be hearable to the last seated one, and that is the reason mic or any that is to be used. So what is the reason? As the distance is enhancing, the quality of the voice is not decreasing, but उसके साथ उसमें voice में थोड़ा delay आ रहा है. Same thing जो natural things में happen होती है, that is going to be executed in a logic gates also. The more number of logic gates are going to be there, उनके series combination रहेंगे, तो the thing which is coming inside the gate and going out, the distance is higher, so naturally there is going to be a delay that will see. इसमें यही बताया कि ये 3 input NAND gate है, you can take the screenshot or you can draw it. Fine. तो ये ABC लिखा है मैंने, you can write down in 1 into in 3 का बार.
ठीक है, fine. Now what is a gate delay? This is an inverter where pull down N transistor and pull up P transistor, they all are of size to reflect effective strength of real pull down or pull up path in the gate. ठीक है, and here we are considering this is my pull down transistor, this is my pull up, and we are considering here that the width of p type और n type both are equal. दोनों की width जो है हम ये मान के चल रहे हैं कि सेम है. ठीक है, एंड द गेट डिले की जहां तक हम बात करते हैं तो पुल डाउन ट्रांजिस्टर इज टर्न ऑन, ओनली एन ट्रांजिस्टर कंडक्ट. ठीक है, सो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ बीटा की अगर हम बात करें, सो बीटा इफेक्टिव हम ये मान के चल रहे हैं कि ओनली particularly pull down means n transistors are working. So when n transistor will work, that I explained in the last class itself also, last to last जब अपन CMOS inverter को discuss कर रहे थे कि whenever high input is going to be there, means when 1 is going to be here, then this circuit this is going to be on, और वही 1 यहाँ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो ये ऑफ रहेंगे. So that is a state which we are discussing कि हमारे सारे n transistors on है. So the effective value of beta जो है, that is beta effective, that is 1 upon beta n1 plus 1 upon beta n2 plus 1 upon beta n3. Basically this is going to be the summation in the series conductance. All three are in series. Fine. Note down this, then we'll move further. क्योंकि इसी से कॉन्सिक्वेंट आगे है तुम्हारा. मैम ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जो बीटा इफेक्टिव अपन ने निकाला है. सो फॉर अ गेट डिले व्हाट इज गोइंग टू बी देयर, इफ आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल द थ्री बीटास, जैसे अपन ने डब्ल्यू तो मान ही लिया था, जब अगर हम बीटा मान रहे हैं इट इंडिकेट्स दैट हमने ये नहीं माना था कि सभी के डब्ल्यू इक्वल है. अपन ने ये कंसिडर किया है पहले कि पी और एन टाइप के जो भी ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी वेट सेम है. बट हियर इफ आई एम कंसिडरिंग दिस, it means W by L of my all three transistors n type, that is going to be equal, and I am equating this as a beta n. Fine, and that beta n is going to be here. So what is going to be beta effective? 1 upon beta n है, तो वो अपन जब evaluate करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, beta n by 3. So pull up case only 1 p transistor has to be turned on to raise the output. ठीक है, so beta p effective is beta p is 0.3 times of the beta. ठीक है, so ये वाली चीज किसकी आई है, हमारे n टाइप ट्रांजिस्टर्स की. और पुल अप केस ओनली 1 p ट्रांजिस्टर हैज टू बी टर्न ऑन टू राइज द आउटपुट. अब इधर p के केस में तीनों पैरेलल में, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मतलब सभी को हम ट्रिगर ऑन करें, एक को भी करें तो भी हमारा काम चल जाएगा. तो बीटा पी इफेक्टिव एन टाइप का बीटा एन बाय 3 रहता है, वेर एज बीटा पी इफेक्टिव लें तो ये बीटा पी रहेगा. सो दैट इज एन इवोल्यूशन पर्टिकुलरली कि डब्ल्यू बाय एल जो है वो पी मॉस का इट इज 0.3 टाइम्स बीटा एन अपॉन 3 मीन्स 0.3 टाइम्स ऑफ बीटा एन. बोथ यूज टू बी इक्वेट. फाइनली दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू विल फाइंड वेरी गुड इन अनिल वेस्टे. मैंने भी उसी में से तुम्हारे लिए मैटर लिया है इसका. ठीक है, सो ये इसको और इलोबरेट करके बताया गया है.
पीसी सीरीज में इतना रहेगा और ये दैट इज ऑल अबाउट दिस और इसमें इसी चीज को एक्सप्लेन करना है like what we mean by gate delay that is a particular delay or you can say pause in a execution of the process we can say okay and how it is happening ये इसमें बताया है कि अगर हम सभी ट्रांजिस्टर में विड्थ को इक्वल मान भी लें देन ऑल्सो द लेंथ इज गोइंग टू बी बिट चेंज एंड एन टाइप का जो रहेगा वो ये आएगा एंड फॉर पी टाइप वी आर कंसीडरिंग ओनली वन कैन बी ऑन दैट कैन बी मटेरियलाइज इट है ना एंड ये लिख लो राइज एंड फॉल टाइम डिफाइन फॉर द पुल अप एंड पुल डाउन ट्रांजिस्टर so for pull up this is a pull up means C बीटा पी इफेक्टिव ठीक है और बीटा पी इफेक्टिव को अपन ने 0.3 टाइम्स ऑफ ये ले लिया है तो ये वाली जो चीज यहाँ पर है बेसिकली ये बीटा पी है इसको अगर मैं n टाइम पे लिख रही हूँ तो 0.3 टाइम्स ऑफ बीटा एन तो के एल अपॉन बीटा पी वी डी डी के एल अपॉन बीटा एन अपॉन 3 ठीक है और मोर और लेस वी कंसीडर दैट राइज टाइम एंड अ फॉल टाइम पुल अप के केस में राइज होगा और पुल डाउन के केस में फॉल होगा तो राइज अपॉन फॉल टाइम इज गोइंग टू बी ठीक है That's it for your gate delay. Now more topic used to become like CMOS gate transistor sizing. ये लिख लिया था क्या ये वैल्यू लिख दो पहले 0.3 बीटा एन को बीटा पी लिखना फिर सेकेंड उसमें तुम इसको बीटा पी करना ठीक है तुम लोग के एग्जाम डेट का शेड्यूल आ जाए आरटीयू पे तो प्लीज मेरे को शेयर करना कोई भी एक स्टूडेंट है ना होने वाले हैं ना एग्जाम क्यों भावना आंचल मनदीप शिवांगी आगे है ना 3rd वीक से स्टार्ट होने वाले हैं तुम लोग के एग्जाम्स अगर टाइम टेबल नेट पे आ जाए तो प्लीज शेयर विथ मी ऑल्सो ठीक है Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजिस्टर साइजिंग गेट डिले इज क्लियर एक्चुअली गेट डिले वैसे ब्रॉड विजन में सबको ही नोन है बट गेट डिले फॉर सीमोस इन्वर्टर आता है देन यू नीड टू डिस्कस दिस ऑल ठीक है now comes the next topic that is CMOS gate transistor sizing so the transistor sizing what we mean by transistor sizing that is a particular कि व्हेन आई एम जैसे गेट डिले के कॉन्सिक्वेंटली रिलेटेड था ये टॉपिक इसलिए मैंने इसको अभी लिया है अदरवाइज दिस टॉपिक शुड एक्सप्लेन आफ्टर CMOS डिजाइनिंग बट लेट इट बी transistor sizing it is telling the name this particular mechanism come into existence when there is a need of particular किस चीज की नीड रहती है अपने को कि I have more number of CMOS circuit and I want to compact it ठीक है so in that particular case what we need to require तो उसमें 3 प्रोसेस है मीन्स जो चीज गेट डिले हमने अभी पढ़ा कि डिले होना इज अ नेचुरल थिंग वट एवर नंबर ऑफ कंपोनेंट वी आर एनहांसिंग सो दैट मेक creates a difference whether it is a 0.3 or 0.1 whatever it is going to ठीक है so another way okay fine gate delay is there how I can reduce my delay it is the next step of your gate delay so transistor sizing is a one way by which we can reduce some amount of delay so we have decided the W by L ratio for all the device and that everywhere you will find that in a CMOS designing or NMOS designing W by L will always going to be exist and that is going to be more clear when I am going to discuss you the lab second part that is a layout and schematic design in that case you will come to know कि how much this W by L is very important क्योंकि एक जरा से W और L में चेंज होगा तुम्हारे so the circuitry is going to be changed and sometime you will not get the result also ठीक है बेटा
सो इसमें 3 मैकेनिज्म है, ये तुम तीनों लिख लो. कैस्केडेड, देयर आर 3 ways to establish, or you can say execute, the transistor sizing. That is cascade complementary inverter, cascaded pseudo NMOS inverter, and stage ratio. ठीक है. And these 3, what the basic meaning that I will let you explain. Something extra you need to search in the book also. But on the whole, the meaning of transistor sizing in the CMOS gate is just whatever delay is coming in the case of more number of CMOS circuitry, just to reduce it. ठीक है. सो फर्स्ट इसमें क्या है, कैस्केडेड कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्टर, सेकेंड है सूडो एनमॉस इन्वर्टर, और स्टेज रेशो. फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग द कैस्केडेड कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्टर. कैस्केडेड का मीनिंग यू ऑल नो, अगर नहीं पता है तो नंबर ऑफ कैस्केडेड मतलब एक से ज्यादा हमारे पास जब सीमॉस इन्वर्टर्स होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कैस्केडेड सीमॉस इन्वर्टर. If we want to have same rise and fall time for inverse, ठीक है, जब more number of CMOS circuitries रहती हैं, then we consider कि WP जो है it is equal to the 2 to 3 times of WN. WP क्या है, channel width of P device है, and WN जो है वो channel width of N device है. तो हम ये क्या मान रहे हैं, we want to have the same rise and fall time for inverse. ठीक है. तो हमने WP is this लिख लो, ये चीज लिख लो बस. फाइन. नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, दैट इज द लेआउट एरिया एंड डायनेमिक पावर डिसिपेशन की हम जब बात करते हैं, और विथ रेफरेंस टू व्हाट, कैस्केडेड स्ट्रक्चर. सो इट इज पॉसिबल टू यूज मिनिमम और इक्वल साइज डिवाइसेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग स्विचिंग रिस्पॉन्स. This switching response is nothing but your gate delay. ठीक है. And important to remember is that change in beta ratio affect inverter threshold voltage. ठीक है. So basically, when I have the cascaded structure of CMOS inverter, whatever purpose that you can write down also, that we want to use minimum or equal size devices without compromising switching response, means without having any delay or speed compromise. जब भी हम स्विचिंग की बात करते हैं तो गेट डिले आता है, और दूसरी एक बात आती है स्पीड. ठीक है. इज इट क्लियर बेटा? सिद्धार्थ, शिवांगी, Yes, ma'am. मनदीप, आंचल, भावना. ठीक है. सो पर्टिकुलरली हमने ये चीज लिया है इसमें, ये नेक्स्ट आ गया तुम्हारा, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री. तो इसमें थ्योरी और तुम लोग देख लेना, बट यस कॉम्प्लीमेंट्री कैस्केडेड में हम यही मानेंगे कि लाइक व्हेन आई हैव मोर नंबर ऑफ CMOS circuitry and I didn't want to compromise my switching response. In that particular case, first thing I will consider कि जो भी मेरी width PMOS की है उससे मुझे 2 to 3 times higher लेना है NMOS को. And secondly, just beta ratio जो है वो ही affect करता है आपकी threshold और other values को. So we need to somehow manage this beta. ठीक है. दिस इज वन वे. सो कैस्केडेड कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्टर का सोल्यूशन मतलब एक ही है इसमें कि ओके फाइन, जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हो उसमें विड्थ का जो रेशो है पीमॉस और एनमॉस का, मतलब पुल अप टू पुल डाउन जो विड्थ रेशो है, चैनल विड्थ रेशो, दैट इफ वी एडजस्ट इन दिस मैनर एंड देन कैस्केड इट, समहाउ इट इज गोइंग टू मैनेज योर स्पीड. ये इसी तरह से लाइक आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन. लाइक कई जगह राउटर्स है और ये जैसे रेडियो ट्रांसमिट, अब तो काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है. व्हेन वी वर इन आवर इंजीनियरिंग टाइम, आई डिड माय माइनर ट्रेनिंग इन लाइक RACB. So and 2 days they visited us. One day on a Doordarshan with Bharti, and one day they put up to the that तुम्हारी FM रेडियो चैनल्स वगैरह जो प्रसार भारती वाला जो ऑफिस है वो लोग हमें वहाँ ले गए थे. So in that time we come to know that
in so many places routers and their channel signals used to be mounted. Ki like our transmitter or receiver section is here, something we want to broadcast. So for that up to a certain limit के बाद हमारे जो channels हैं उनके लिए हमें router या और भी signal receiving and transmitted parameters चाहिए, तो वो हर जगह माउंट करके रखते हैं. अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वायरलेस डिवाइसेस और बहुत सारी चीजें आ गई हैं. सो सिमिलर काइंड अगर हम बहुत लो लेवल पे या हम हमारे सीमॉस की बात करें तो इसमें भी यही है कि जब बहुत ज़्यादा है और हमें डिले भी नहीं चाहिए और स्पीड बढ़ानी है, तो सिंपली हम जो विड्थ है हमारे पीमॉस की उसको बढ़ा दें. इससे एक तरीका है ये कि इससे हो सकता है अप टू सर्टेन एक्सटेंट हमारा डिले कम हो और स्पीड बढ़े. स्पीड बढ़े मीन्स क्या होता है, अभी अपन उस वो लेवल का अपने VHDL प्रोग्रामिंग नहीं है, नहीं तो जो प्रोग्रामिंग अपन अभी लास्ट क्लास में डी फ्लिप फ्लॉप की है, ठीक है. इन द सेम फ्लिप फ्लॉप लाइक इन माय एमटेक टाइम आई जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस कि अगर मुझे गेट डिले नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड का भी देखना है, that is very easily visible. Not easily, we need to do sudden programming changes and all, but हो जाता है. तो कई बार हमें लग रहा है कि कुछ भी डिले नहीं हो रहा है, तो वो एक आइडियल वैल्यू में डिले नहीं हो रहा है. उसके माइनर रिसर्च एरिया में जाओगे, यू विल कम टू नो कि हाँ डिले है. ठीक है. द सेकेंड इज द pseudo NMOS inverter. That is a second way of transistor sizing. So transistor sizing is one technique, is a method in which follow three things. First one is a cascaded complementary inverter in which I am managing WP with respect to WM. Second is here P is a silent. In a pseudo P तुम्हारा silent रहता है. तो cascaded pseudo में क्या किया जाता है, this is I just suggest you to draw. Why? Because in this particular technique F तो W by L हम इस तरह से लेते हैं 2/3 and 2/1. मतलब लेंथ का जो रेशो है, अब इसमें W कांस्टेंट कर दिया है लेकिन लेंथ जो है N की वो 1 है, तो P की 3 times हायर रहे. Secondly, PMOS terminal used to be grounded always, and only the signal which used to comes in the CMOS, that is by the NMOS. So that is a particular circuitry. Just draw it. Done, ma'am. या ठीक है. सो अब इसमें यही चीज हमें ध्यान रखनी है. सूडो NMOS इन्वर्टर क्या होता है? बेसिकली इट इज नॉट द NMOS इन्वर्टर. ये क्या है, देखो एक NMOS है, यहाँ CMOS है, ये एक CMOS हम ले रहे हैं. इस तरह के नंबर ऑफ कैस्केडेड का मीनिंग होता है नंबर ऑफ दिस सीक्वेंस यूज्ड टू बी देयर. ठीक है. तो हमने इसको ग्राउंड कर दिया है. दैट इज व्हाई वी आर टेलिंग सूडो NMOS. When और इसकी सूडो NMOS इन्वर्टर की डेफिनेशन ही यही है. In my CMOS circuitry, while maintaining the W by L of P and N in such a manner and ground the particular PMOS terminal, and input is going to feed only by the NMOS, that is a pseudo NMOS. Fine. और इसकी जो mechanism है, that see this uses the 3:1 transistor width ratio. एंड अप्रोक्सीमेटली ये इसमें मैं पूरे गेट डिले वगैरह के मैथमेटिक्स बताई है, बट यस इसका कंसेप्ट ये तुम्हें मेन जो है वो ये ध्यान रखना है. इसके बाद इसके जो गेट डिले वगैरह की इक्वेशंस तुम्हें नील वेस्टे में और इसमें मिल जाएगी. पकनील में भी है शायद सूडो NMOS. ठीक है. नाउ थर्ड टेक्निक इज अ स्टेज रेशो. इसमें स्लाइड वे में ये जो इन्वर्टर 1 2 3 4 बताए हैं, दिस आर नथिंग बट योर CMOSes. ठीक है. ये जो तुम्हारे हैं ये CMOSes हैं. जब इतने CMOS जैसे 4 स्टेजेस हैं. So what do we mean by stage ratio? Please write down. Ratio by which each stage is increased in a size. That is called stage ratio. That is figure out here. इसको इतने ब्रॉड वे में इन्होंने नहीं बनाया है. But stage ratio means if I am using a more number of CMOS inverters, then the stages are size of an CMOS is going to enhance with respect to the stages. जैसे ये है छोटा, इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, इस तरह से हम उसमें ले सकते हैं.
तो ये जो टेक्निक रहती है जिसमें नंबर ऑफ इन्वर्टर्स आर कनेक्टेड डिपेंडिंग ऑन देयर साइजेस, दैट इज कॉल्ड स्टेज रेशियो. ठीक है. So often it is used to drive large load capacitance, input output buffers, ultimate pairs, and off switch capacitive load. And basically this is achieved by what? ये जो stage ratio है, that important line is this: it is achieved by a chain of inverters where each successive inverter is made larger than the previous one until the last inverter in the chain can drive the large load in the time required. So stage ratio इन तीनों में जो है सबसे पहले इन्वेंट हुई थी कैस्केडेड कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्टर. वेरी सुन इट इज फाउंडेड कि नो इट इज नॉट रिड्यूसिंग समहाउ माय स्पीड, मतलब गेट डिले. देन सूडो एनमॉस केम इनटू एग्जिस्टेंस, बट सूडो एनमॉस इज बिट कॉस्ट एक्सपेंसिव बिकॉज हम उसे सूडो एनमॉस इन्वर्टर का नाम दे रहे हैं, बट यूज तो हम सीमॉस कर रहे हैं और उसके पीमॉस को बिल्कुल ही यूज ना करके ग्राउंड कर दे रहे हैं. ठीक है. Then it came that number of transistor just use like as it is. CMOS जो है वो वैसे ही यूज होगा, बट हर CMOS को जो मैं नेक्स्ट CMOS यूज करूंगी उसका मैं साइज बढ़ा. एंड दैट इज अ वे कि इससे डिले भी रिड्यूस हो. ठीक है. ये लिखना चाहते हो तो लिख लो. आई एम गिविंग यू 2 minutes. फाइन. यही चीज इसमें बताई है. पावर डिसिपेशन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सी व्हाट आई डिड, मैंने सारे थ्योरी टॉपिक्स पहले ले लिए हैं और उसके बाद ये तुम्हारा ये यहाँ से ये जो सीमॉस लॉजिक सर्किट डिजाइनिंग है ये तुम्हारे लैब पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको श्योर अटेंड करो. सेकेंड पार्ट जो हमारी लैब का है वो यही है. नाउ प्लीज गिव यू अटेंडेंस एंड फॉर सस्टेनेबल इंजीनियरिंग will again join within 5 minutes. कितने मिनट का ब्रेक चाहिए पहले ही बता दो, क्योंकि नेक्स्ट वीक से तुम लोगों के एग्जाम्स भी होने हैं, हमें उसकी भी प्लानिंग देखनी है. यस आंचल, अटेंडेंस दो बेटा. Present, ma'am. भावना, मनदीप, Present, ma'am. शिवांगी, सिद्धार्थ. Shivangi present, ma'am. सिद्धार्थ present मैम. ओके. तो अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 11:30 बज रहे हैं. सो 11:40 पे आ जाओ सस्टेनेबल की क्लास में. ठीक है ना? ओके. सो आज अपन ने गेट डिले एंड ट्रांजिस्टर साइजिंग किया. हाँ बोलो बेटा. ओके. ठीक है. ओके. सी यू लाइक ज्वाइन विद इन 5 minutes. ठीक है. ओके आंचल.